So JEE main results are finally out and now you know where do you stand. अब तुम्हारे सामने क्लियर पिक्चर है कि कहाँ तुम स्टैंड करते हो, एक मिरर है तुम्हारे सामने कि एक्चुअली में तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी है. अभी तक तो लगता था पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया भैया, आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, आई हैव गिवन सो मेनी टेस्ट, आई हैव सॉल्व्ड सो मेनी क्वेश्चंस. बट नाउ यू नो द रियलिटी इन ऑल इंडिया लेवल दैट वेयर एग्जैक्टली डू यू स्टैंड. कितने परसेंटाइल आए नीचे कमेंट करके बताना. तो 80 परसेंटाइल, 88 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा. बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग तुम्हारी कितनी भी परसेंटाइल हो, इट्स नॉट गुड इनफ. नॉट गुड इनफ टू गेट इन टू अ वेरी गुड कॉलेज, दैट इज फॉर श्योर. I was in the exact spot as you are in right now few years back, and I took a decision, and that decision completely changed my life. The decision to completely shift my focus and prepare for BITSAT and get into BITS Pilani. I still remember watching a video of one of the seniors of BITS Goa who made a video of a day in my life at BITS Goa. उस वीडियो से मेरे को पता चला that BITS has such a great startup culture. BITS has 0% attendance policy. I can do whatever I want once I get into this college. BITS has such a great coding culture. BITS has such great placements and what not. Plus on top of that, the college life that BITS has is absolutely amazing. If not better, it is at par at that of IIT. I saw that as an opportunity to get into a tier 1 college even after having a bad JEE prep, even after scoring low percentile in JEE main. So right now you have two options कि यार JEE main के रिजल्ट के बारे में ही सोचते रहूं, है ना, JEE main के रिजल्ट के बारे में ही रोते रहूं, और द सेकेंड ऑप्शन टू एक्चुअली फोकस अहेड, एक्चुअली फोकस ऑन एन एग्जाम लाइक BITSAT which offers such a great spectrum for your future life, which holds so much opportunities as a tier 1 college. You still have one more chance left, literally one more chance left to change everything for yourself, to get into the college of your dreams, the branch of your dreams. But वो तभी होगा if you take the right steps. If you keep on getting distracted, if you keep on doing the same mistakes that you have done for JEE, the result is going to be the same. So the number one thing is leave the baggage behind. रोना है ना, बैठ के रो लो, एक दिन 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, बैठ के रो लो. But उसके बाद start with immense focus that you need to crack BITSAT. You need to get into BITS Pilani and give your best shot. So भैया, what should be our next steps? हम क्या करें अगले कुछ months में? What should be our approach so that we do well in board exams, we do well in BITSAT and get into BITS Pilani? So for most of you who are in class 12th, your number one focus right now should be your board exams for 1 month. But does that mean to ignore BITSAT completely? Does that mean कि मैं पूरी की पूरी BITSAT preparation छोड़ दूँ? No. You need to do BITSAT preparation side by side. That is very important. वो preparation कैसे करनी है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, but it is super important. And also it is important that you do not miss out on the 75% criteria that BITS Pilani has. काफ़ी बच्चों के तो 250-260 मार्क्स आ जाते हैं, बट उनका बोर्ड्स का क्राइटेरिया क्लियर नहीं होता है. सो क्या फ़ायदा होगा, तुम्हें एडमिशन मिलेगा ही नहीं. सो टेक अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 80% इन बोर्ड्स, ताकि तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इजीली क्लियर हो जाए. बट साथ ही साथ डेली 3 to 4 आवर्स यू नीड टू गिव टू योर BITSAT प्रेप सो दैट यू डू नॉट लूज टच. जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम खत्म हो ना, तुम ऐसे क्लूलेस नहीं हो कि मुझे क्या पढ़ना है ना, मुझे कुछ याद ही नहीं है भैया, अब तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैंने JEE में क्या पढ़ा था. दिस शुड नॉट हैपन, अदरवाइज तो सब कुछ उस पॉइंट पे खत्म हो जाएगा. एंड सेकेंडली, इफ यू आर ड्रॉपर, दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज योर गोल्डन चांस. एक साल ड्रॉप लेके भी देख लिए कि JEE में तुम्हारा क्या रिजल्ट आया है. Now it's important that you take the right call and utilize all these months to its fullest when class 12th के students will be busy in preparing for board exams. This is your time to clutch. This is your time to get ahead of so many students. So boards के लिए पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, NCERT पढ़ रहे हो, फिजिक्स की थ्योरी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ रहे हो, realize one thing, the same thing is going to be used in BITSAT. You just need to solve particular questions of those chapters. NCERT पढ़ रहे हो, right, केमिस्ट्री की, NCERT पढ़ रहे हो, फिजिक्स की, right, डेरिवेशन पढ़ रहे हो. All of these things are being asked in BITSAT. Do not think that कि बोर्ड्स के लिए अलग से पढ़ूंगा, BITSAT के लिए अलग से पढ़ूंगा. क्लब those things together. एक सिनर्जी बनाओ, एक हाइब्रिड वे ऑफ स्टडिंग बनाओ, तो जाके अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस होगा. Let's say you are studying a particular chapter in chemistry
एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ने के बाद में उसके बिटसैट रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। फोडू क्लब की इतनी ज़्यादा रेलेवेंट बुक ऑलरेडी बिटसियंस ने तुम्हारे लिए बना रखी है। 30 to 40 सिलेक्टिव बेस्ट क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर लो ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल, 1-2 घंटे निकाल के, एंड यू विल नॉट लूज आउट टच फ्रॉम योर बिटसैट प्रिपरेशन। इफ यू आर पार्ट ऑफ एनी टेस्ट सीरीज, एनी क्रैश कोर्स, कीप गिविंग द चैप्टर वाइज टेस्ट, कीप सॉल्विंग द डीपीपीज, दैट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, एंड इस वे में you won't ever lose out touch from your BitSat preparation. The number one task that each and every one of you need to do right now, that is give one mock test. एक mock test दो BitSat का and see where do you stand in terms of BitSat, कि एक BitSat के perspective से where do you stand. Are you able to manage 130 questions in 3 hours? Right? Are you able to solve BitSat level questions? Where actually do you stand? जब तक ये चीज़ पता नहीं चलेगी तब तक तुम right steps नहीं ले पाओगे आगे। For me, one thing that literally changed everything was English and logical reasoning. Most of the students ignore English and logical reasoning during your board's preparation as well. Droppers, when you're preparing for your BitSat exam, don't ignore English and logical reasoning. It is literally free के 90 marks. 90 में से at least 70 marks तो ला ही सकते हो अगर daily consistently 20 minutes भी practice करते हो। 20 मिनट्स क्या होता है? 20 मिनट्स इधर उधर चीज़ें करने में, टाइम पास करने में, फ़ोन चलाने में चले जाते हैं। गिव 20 मिनट्स टू इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग प्रिपरेशन, इट विल लिटरली चेंज एवरीथिंग फॉर यू, ट्रस्ट मी। काफ़ी लोग अभी ये चीज़ सोच रहे होंगे, भैया बिटसैट क्यों, मैं तो जेईई मेन सेकेंड अटैम्प्ट में फोकस करके अच्छा परसेंटाइल ले आऊँगा सेकेंड अटैम्प्ट में। कितनी परसेंटाइल ले आओगे एक्स्ट्रा यार? 80 परसेंटाइल आइए, 85 ले आओगे, 90 ले आओगे, 92 परसेंटाइल आइए, 94 ले आओगे, 95 ले आओगे, कौन सा अच्छा कॉलेज मिलेगा? Just ask yourself this question. The same amount of effort that you'll put in JEE main second attempt and the same amount of effort that you'll put in BitSat will give you much higher returns than JEE main. इसके अलावा statistically speaking, competition in JEE main second attempt increases drastically every single year, as well as the paper gets tougher in comparison to the JEE main first attempt, as well as a lot of students end up doing even worse than what they did in JEE main first attempt. So अब कोई स्मार्ट बंदा होगा तो he will take a decision accordingly. Now जब मैं अपने टाइम में प्रिपरेशन करता था ना, बिटसैट की उतनी अच्छी रिसोर्सेज होती नहीं थी। आई यूज टू सर्च अ लॉट कि यार बिटसैट का मुझे कोई प्रॉपर लेक्चर मिल जाए, बिटसैट की मुझे कोई प्रॉपर रेलेवेंट टेस्ट सीरीज मिल जाए, बट I did not get all of those things, and that's why we Bitsians have made the best platform for you, that is फोडू क्लब। फोडू क्लब में तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाती है, वॉट एवर आई हैव मैंशन टिल नाउ, एंड लिटरली इट विल मेक योर लाइफ सो मच मोर ईजी। द क्रैश कोर्स दैट फोडू क्लब ऑफर्स इज दैट, पहली चीज़ तुम्हें डिटेल्ड लेक्चर्स मिल जाते हैं जिसमें थ्योरी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग 10+ ईयर जिनके एक्सपीरियंस है ना टीचर्स, उन्होंने कवर कर रखी है लिटरली 1.5 to 2 आवर्स में। इसके अलावा तुम्हें स्पेशलाइज ट्रिक्स का कोर्स मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें कि तुम्हें ट्रिक्स एक्सप्लेन कर रखे हैं ताकि तुम स्मार्ट वे में, स्पीडी वे में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। इसके अलावा थर्ड, यू ऑल्सो गेट लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस विद टॉप टीचर्स ऑफ दिस कंट्री। मैथ्स के लाइव सेशंस तो खुद कुणाल सर लेने वाले, सो इमेजिन द काइंड ऑफ स्पीड दैट यू आर गोइंग टू डेवलप। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो हु कुणाल sir is. Kunal sir is one of the top teachers in this space who have produced so many IITians and Bitsians in the past. इसके अलावा एज आई टोल्ड यू अबाउट इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, अब इंग्लिश एंड एलआर का सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना वास्ट है, कहाँ कहाँ भटकोगे, कौन कौन से रिसोर्सेज करोगे इधर उधर। दैट इज़ वाई वी हैव कंपाइल्ड एवरीथिंग फॉर यू। यू गेट शॉर्ट लेक्चर्स ताकि उन लेक्चर्स से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, एंड देन यू गेट द वर्कशीट्स, तो उन वर्कशीट्स को सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस पूरी की पूरी अच्छी तरीके से हो गई उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। एंड लास्टली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज ऑफ दिस कंट्री फॉर बिटसैट, फोडू क्लब पिछले कुछ सालों से बनाता आ रहा है, एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी यूज्ड द टेस्ट सीरीज टू गेट इनटू बिट्स पिलानी। सो यू गेट दिस टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू एनरोल इन द क्रैश कोर्स, और ये तुम टेस्ट सीरीज अलग से भी ले सकते हो अगर तुम्हें क्रैश कोर्स नहीं लेना है तो। You get full length mock tests as well as chapter wise tests which are super important for you to practice in a timed manner. जैसा मैंने बोला ना, बोर्ड्स की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा सा तुम्हें टाइम मिल गया, 1 घंटे का स्लॉट मिल गया, जस्ट गिव 1 चैप्टर वाइज टेस्ट ताकि तुम्हारा टच लूज नहीं होगा बिल्कुल भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या इस टेस्ट सीरीज़ की, कि इसमें तुम्हें एग्जैक्ट इंटरफेस मिलता है बिटसैट का जो तुम्हें एक्चुअल एग्जाम में मिलने वाला है। ये तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलेगा। एंड द सेकेंड थिंग, बिटसैट की स्पेशल चीज़ होती है बोनस क्वेश्चंस, 130 क्वेश्चंस प्लस 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो तब ओपन होते हैं व्हेन यू अटेम्प्ट ऑल द 130 क्वेश्चंस। दिस फीचर
is also there in Fodu Club, which is not there in majority of the other platform. Trust me, there have been so many students like you, so many students in the exact spot you are at right now, and they have made it to BITS Pilani. Students who scored 88 percentile, students who scored 90 percentile, students who scored 90 to 93 percentile. These guys are sitting in computer science, electronics, MNCs branch of BITS Pilani. So if they can do it, you can do it too. यहाँ स्क्रीन में तुम मीटअप पिक देख सकते हो फोडू क्लब के. ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स यूज्ड फोडू क्लब एंड अल्टीमेटली गॉट इनटू BITS Pilani. They were in the exact same spot as you are in right now, and they ultimately took a smart decision and got into BITS. Now यार तुम्हारे ऊपर है कि तुम पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज़ में लगाओ और जिसमें कि चांसेस ऑफ फेलियर काफ़ी ज़्यादा हाई है, या फिर अपने चॉइसेस को डाइवर्सिफाई करके फोकस बिटसैट में भी डालो, so that you have an option open in the month of May, in the month of June जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है. तब तुम VIT, मणिपाल, थापर, Tier 2, Tier 3 कॉलेज, लोकल कॉलेजेस के बारे में सर्च करने की नौबत नहीं आ रही. ऑल्सो ओनली ज्वाइन फोडू क्लब इफ़ यू आर वेरी वेरी सीरियस. फोडू क्लब ज्वाइन करने के बाद में चीट करोगे, पढ़ाई फिर से नहीं करोगे, देन इट्स ऑफ नो यूज़. ओनली इफ़ यू आर सीरियस अबाउट BITS Pilani एंड वॉन्ट टू गेट इन टू BITS Pilani, तभी ज्वाइन करना. माई फ्रेंड, द जर्नी हैज़ बिन टफ, I know, but I believe in you. You can do it. You can make a comeback for yourself, and you can be the next BITSian. So यार ये तो बात थी कि what to do after failing JEE Main and how to prepare for BITSAT. तो अगर तुम्हें ये जानना है कि BITS की अपनी ही एक लीग क्यों है, BITS एक completely different college क्यों है, इतना elite institution क्यों है, तो मैं इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ. यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को तुम देख सकते हो. Wish you all the very best.